Today's chief, Honorable Past President ICI and today's chief guest, CA Atul Kumar Gupta sir. Today's learned speaker, Sanjeev Bhasin sir, known for his Bhasin ke Hasin share. Respected Chairman CARC, CA Nilesh Gupta ji. My elder brother, Honorable Vice Chairman CARC, CA Atul Agarwal ji. My younger brother from Ranchi, Executive Member CA Pankaj Makkad ji. And viewers of this 8th day of 9-day series of VCM on Capital Market Outlook 2022, who have joined across the world. A very good evening, Jai Shri Krishna, Namaskar, Vadakkam. I, CA Devan Somani, welcome you all in this today's VCM on Capital Market. Since we have with us very respected Atul Gupta sir and honorable learned speaker Sanjeev Bhasin sir, so and we have also with us Chairman CA Nilesh Gupta sir. So without wasting your time, I straightforward request Nilesh Gupta ji for opening remarks. Thank you, Devendra ji. Very respected, our dynamic, energetic past president of ICAI, Atul Gupta sir. नमस्कार सर, स्वागत है आपका आपके CIRC में. Very respected, learned speaker of this 8th day of 9th series on capital market and crypto outlook, Sanjeev Bhasin sir. Respected Atul Agarwal ji, Vice Chairman CIRC. Pankaj Bhai Makkad from Ranchi, my elder brother, immediate past chairman of CIRC. Devendra Somani ji, Secretary CIRC, Shashikant Chandrakar ji and other managing committee member. And of course, very respected viewers of this 8th day of 9-day series on capital market and cryptocurrencies. Without taking much of time, I directly welcome all the viewers of this series. And 8 दिन में हम लोगों ने जो पूरा सफर लिया है डे 1 से 2022 के पहले दिन से आज दिन में, और क्रिप्टो पे हम लोगों ने जो हमारे जो मॉडरेटर हैं सीरीज के देवेंद्र भाई, उनके सानिध्य में जो काम हुआ है, तो आई एम श्योर कि कैपिटल मार्केट और क्रिप्टो के जो पूरे इंडिया के जो बेस्ट स्पीकर्स हैं, जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन सबसे हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ जानने को मिला है. और डेफिनेटली विद दिस नॉलेज स्प्रेडिंग बाय दैट स्पीकर्स, आई एम श्योर कि जिस तरह से अभी जो हमारे स्पीकर सर हैं आज के, वो बताएंगे कि किस तरह से 2022 में हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्टफोलियो बना करके और कहीं ना कहीं कुछ हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. अतुल गुप्ता सर के कार्यकाल में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो डेरिवेटिव्स इनकम होती है या डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस पे जो इनकम होती है उसको करने का जो छूट मिला था, तो वो भी अतुल गुप्ता सर बताएंगे. विद दिस वर वेलकम ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Thank you, Nilesh Gupta ji, for your opening remarks. I really enjoying working with the entire team of CIRC under your able leadership. Now we have with us honorable respected past president, rather I can say my president, as during my tenure when I was chairman CIRC, he was president ICI, and I learned a lot from him. He guided us so well during his entire tenure. He was so dedicated towards the profession. I saw him very closely during his tenure as a vice president and as a president of ICI. So I am lucky enough under his guidance and under his able leadership, I worked as a chairman CIRC. So now I request our honorable past president CA Atul Gupta sir. Over to you, Gupta sir. Thank you. The past chairman of Central India Regional Council of ICI, Devendra Bhai,
the very respected chairman of the Central India Regional Council, CA Nilesh Bhai, and the dynamic speaker, Sanjeev ji, Atul ji, Pankaj ji, all the other distinguished colleagues who are the panelists for the day, and number of members who have joined already, more than 150 members have already joined. A very good afternoon to all of you, rather than good evening to all of you. And I pray the Almighty for the well-being and safety for each one of you. My request to you that though the new COVID variant seems to be not so much of a, I will say, the giving the bad results to the health as compared to the Delta, but still we have to take care of all the precautions, and please see that how best we can take care of ourselves and our family members. Friends, as far as the this program is concerned, I feel privileged to be the part of this program on the 8th day, when this 9-day series is being organized under the aegis of Chairman CA Nilesh Gupta ji and Devendra Kumar Somani ji. And I see that there is always a dynamism in the working of Nilesh Bhai and Devendra Somani ji, along with the Atul ji and others, that even if there is a pandemic situation, even if so I used to say that pandemic can have a lockdown, but that cannot knock down to us. So we are still pursuing the motto of the ICI, Ya Esh Shabdeshu Jagrati, meaning thereby the person who is awake when everybody is sleeping, shaping the desire after desire, meaning thereby that our pursuit for the excellence, our pursuit for the knowledge enrichment is always there. And that's why we have requested Sanjeev Bhasin ji to share his word of wisdom with our members today, that how they can very safely and effectively use the capital market in the given scenario. My dear friends, I am not the capital market expert, so Sanjeev ji will be taking charge of that, and I will not be touching upon, but only point which I wish to convey you, that over a period of time, with the advent of the sustainability part, there is a, I will say, the different dynamism which is emerging out after the sustainability came into the discussion over like in last few years, I will say. Earlier, friends, when we see the sustainability, we were looking towards more the values as compared to the value, meaning thereby it was a moral value more, and moral values were it was being taken as a moral values rather than the value perspective, meaning thereby the companies, the corporates, the stakeholders were looking that it's not my job, it is the job of the government and they have to take care. But in the last few years, that has taken a paradigm shift, and the sustainability has taken a shape when it is being treated more the values, meaning thereby in case you are sustainability compliant, then the investment in value come in your company. Now, why I'm discussing all these things today, it's very, very important. Even the Sanjeev ji, I believe, will be touching upon this aspect, that now the capital market have a clear-cut impact of this sustainability as well. That in case the companies are adhering with the sustainability, ESG reporting, and so on, then after factoring, the investors are looking for a responsible investing. So today, when we are looking for the investment, I saw the WhatsApp today that there was a guy who mentioned that, okay, I am traveling only in the electric vehicle, and by virtue of that, I saved this much of a carbon emission. So what I'm trying to convey you, when every investor is looking towards the responsible investing, I'm marking in my word, the inverted comma, the responsible investing, actually what will happen that in the times to come, even in the capital market, the companies will be able to sustain and get the more attraction and the investment, where they will be more compliant with the sustainability reporting as compared to the companies who are not compliant with the sustainability reporting. So what happened with this, that there are the certain factoring which is being introduced by the ESG through the various standards, and now the investors are evaluating globally that whether this investment is worthwhile to invest or not. And because of that, you will find that the largest Indian companies who are having the very huge profits, but they are not getting the attraction from the investors,
and that's why their shares are not increasing. So there is a gradually direct link which is emerging out, that in case the companies are having the better sustainability reporting, better index of the sustainability, then the attraction of the investors are there, because that shows the prospective nature of the investment, that okay, my investment will be much safer. Today you can see that when we see the companies are collapsing overnight, there are the three very important aspects which the international market and the all the investors are looking for. E stands for the environmental compliant, S stands for the social compliant, and the G stands for the governance compliant. So now along with this, there are the various parameters which are being getting created, and now the investment in the future will certainly have a mark of that particular aspect. So while Sanjeev ji will be discussing all these aspects, I will just urge upon Sanjeev ji as well that we have to very importantly note down this aspect also, that in the times to come, it's not the okay that you are looking only the profit or the PBT or the EBITDA will decide that which company shares will increase. It will be the certain other factors, including the sustainability, that will also have the impact of the capital market and the vis-a-vis the share value, the market value of a particular company, and that will play a very important role. So my dear friend, there are n number of things which is very important, and I believe that the cautious approach and the I will say the sustainable approach which Sanjeev ji is going to share with us will be very useful, handy, and knowledge worth listening by each of the participant. And I believe under his guidance, the CIRC, which organized this program, will remain very useful for our participants at large. With these words, I convey my sincere thanks to Devendra Bhai and Nilesh ji, Atul ji for giving me this opportunity, and my best wishes to Sanjeev ji for his wonderful deliberation. Thank you very much. Thank you, Atul sir, for enlightening us by your words of wisdom. आपने आज सवेरे ही मेरे एक छोटे से फोन कॉल के निवेदन पे तुरंत हमें जो एक्सेप्टेंस दी, उसके लिए बहुत बहुत सर हम आपका दिल से आभारी हैं, और आपका प्यार इसी तरह हमारे लिए बना रहे। और हमेशा जब भी मैंने आपको याद किया, आपने मेरी रिक्वेस्ट को पहली बार में एक्सेप्ट किया, मैं बहुत इसके लिए आभारी हूँ सर। नाउ आई रिक्वेस्ट CA पंकज मक्कड़ जी टू इंट्रोड्यूस अवर लर्नेड स्पीकर, दो ही नीड नॉट एनी इंट्रोडक्शन। आप देख रहे हैं सर, उनके नाम से या 200 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो अभी जैसे जैसे समय बीतेगा तो तब तक और काफी लोग जुड़ते जाएंगे। तो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल पंकज मक्कड़ जी टू इंट्रोड्यूस अवर ऑनरेबल लर्नेड स्पीकर संजीव भसीन जी। Thanks a lot, sir. Mr. Sanjeev Bhasin has been with IIFL Limited since May 2015 and is presently the director of India Infoline Securities Limited. He has over 30 years of experience in almost all domains of capital market, which includes merchant, investment banking, broking, fund management, arbitrage, derivative quantity funds, research, and so on. Previously, he was running a pro book for Deutsche Bank AG at Hong Kong for 5 years and has worked as a consultant on equity market at NDTV Profit for over 4 years. He is well known for his presence on coverage of market all over TV channels, namely CNBC, CNBC Awaz, Zee Business, ETV Now, BTVI, Bloomberg, Quint. He is commerce graduate from Shriram College of Commerce and Chartered Wealth Manager. He covers extensively market research and interacts with both retail and corporates. With these words, I would like to welcome you, sir. Thank you. Thank you, Pankaj ji. Since Sanjeev Bhasin sir is with us, और संजीव, मैं हमारे व्यूअर्स करीब सभी जानते होंगे, जब कोरोना काल के बाद सबसे पहले अगर तेजी किसी ने आइडेंटिफाई करी तो इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर वो संजीव भसीन जी ने करी थी। मुझे आज भी याद है जब सब लोग बता रहे थे मार्केट बड़ा घबराहट का माहौल था, पता नहीं कहाँ होगा, मैं भी बड़ा चिंतित था, सारी हमारे जितने इन्वेस्टर हैं बड़े चिंतित थे, सबके पोर्टफोलियो लगभग आधे हो चुके थे। तो उस समय पे आपने बताया था कि हर 6 महीने वीकली बेसिस पे आप 6 और 8 हफ्ते की SIP में आप इन्वेस्ट करें। और मेरे ख्याल से पहले स्टॉक एनालिस्ट थे
बाकी तो जैसे तेजी चल रही होती है तो सब तेजी बोलते हैं, मंदी चल रही होती है तो सब मंदी बोलते हैं। आप पहले एनालिस्ट थे जिन्होंने कि उस समय बोला था कि आप इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, और मेरे ख्याल से बिल्कुल वो आपका सही एक कदम था और आपकी सही राय थी। जिन लोगों ने भी आपको फॉलो किया होगा, नो डाउट उन्होंने बहुत बड़ा पैसा उसमें बनाया होगा। यार मार्केट बहुत बड़ा रिस्की है, सब तरह का होता है, तो हमें बहुत प्रिकॉशन भी लेने होते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ के हम भसीन जी को सुने और इस सेशन को एंजॉय करें। So now I request Sanjeev sir, over to you, sir. थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू ऑल द एस्टीम्ड गेस्ट। आप सबको नए साल की मुबारक हो। जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी, जय माता दी। मैं कल ही आ रहा हूँ वैष्णो देवी से, और वहां पे 1 डिग्री था, बर्फ हो रही थी, बर्फ गिरने को तैयार थी, लेकिन हमने बुलाया तो दर्शन करके आए कि ये बीमारी भी जल्दी जाए और शेयर बाजार चले और सबको वापस सेहत और खुशी और खुशहाली आए। तो होपफुली वी शुड हैव अ गुड ईयर। yes, this year saw the last month to be one of the worst, और आप सबने देखा मंथ ऑफ दिसंबर वाज वेरी वॉलेटाइल। अब आपके सामने कुछ फिगर्स रखूं तो from 18,600 which we hit on 19th of October, we hit 16,410 on 20th of December, और 2 महीने में we lost about nearly 12%। 2200 पॉइंट जो हमने गवाए वो 21 तारीख से आज 5 तारीख वापस उसमें हमने ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स गेन कर लिए। तो आपको मैं रिट्रेसमेंट टेक्निकल पे जो समझते हैं, दे विल नो दैट व्हेन यू फॉल द फर्स्ट रिट्रेसमेंट इज 0.38, देन 0.5 एंड देन 0.61। सो 0.61 इज 17,752 व्हिच वी रिट्रेस्ड। तो 2 महीने में जो हम गिरे वो 14 दिन में हम वापस आ गए। अब आप उसको या तो स्ट्रेंथ ले सकते हो, या पुल बैक कह सकते हो, या वीकनेस कह सकते हो। The jury is divided. The markets are not cheap and were expensively priced at 18,600, waiting for a correction, and at 16,400 there was a lot of optimism. Again there was pessimism. जैसे आपने कहा वो जो 8,000 का लेवल था या 7,500, वहां पे लेने का बहुत कंफर्ट था। 18,000 और 16,000 में अभी भी थोड़ा सा दुविधा है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। आपके एक्स प्रेसिडेंट ने बताया ESG has become globally a very big factor, और उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन कंपनी का नाम है ITC, जिसके प्रॉफिट सारे FMCG के से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको 14, 15, 18 टाइम का वैल्यूएशन मिलता है, मेनली बिकॉज ऑफ द टोबैको बिजनेस। तो ये दुविधा रहेगी, व्हाट विल परफॉर्म, व्हाट विल अंडर परफॉर्म। But let me tell you the 3-4 reasons why markets went through this big correction. Firstly was that we were one of the better performing markets, and the FIs, so the FIs turned huge sellers. आपको ये भी जान के अचंभा होगा that FIs have sold more than 1 lakh crore। तो ये liquidity driven rally नहीं है जो टीवी पे आपके आके इंग्लिश में स्कॉलर्स आके बताते हैं। This is not a liquidity driven rally by the FIs. The backbone of this market has been the retail investor, जिसने SIP और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स को नया कलर दिया है। मैंने अपनी लाइफ में 34 साल काट दिए सर, मैंने ऐसा पैसा कभी नहीं देखा जहां रिटेल इन्वेस्टर डरता नहीं है। एंड आई कवर लॉट ऑफ स्मॉलर सिटीज, आई मीट पीपल अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम, वहां पे लेने की इच्छा है, बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। सो ये जो ट्रेंड है दैट इक्विटी एज एन एसेट क्लास रहेगा, ये अगले 2, 4, 5 साल नहीं, ये तो 20-30 साल रहेगा। आपने देखा है 7 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, 140 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ आदमियों के पास शेयर नहीं है, उससे भी कम के पास। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपसाइड पार्टिसिपेशन का कितना है। इसका मतलब ये नहीं कि द मार्केट विल गो ओनली वन वे, बट इट टेल्स यू दैट हाउ मच स्ट्रेंथ द इंडियन मार्केट्स exhibited, that 1 lakh crore of money got absorbed, or market corrected just 11%. 11% after almost 1 lakh crore, which is unbelievable. इसका मतलब the Indian market's depth has become like not an emerging but a developed market, which is a very, very big positive. सबसे बड़ा positive ये है कि FIs are no longer the dominant players they were, and the retail investor is putting his money where his mouth is. 4 asset classes होते हैं, आप सब जानते हैं, gold and silver as in bullion, real estate, fixed income and equity. सोने और चांदी को आप हाथ नहीं लगा सकते बिकॉज उसकी मालकिन आपकी वाइफ, आपकी माताजी, आपकी बहन है। इट्स एन इमोशनल एसेट, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते।
जमीन आपके पास एक घर बन गया, उसको भी बनाने में 30 साल लगे। फिक्स्ड इनकम में 8-8.5% फिक्स्ड रिटर्न है। द ओनली ब्लू चिप इज इक्विटी, जहां 5,000 रुपए का सिप भी हो सकता है और 5 लाख का भी इन अ मंथ। अब आगे क्या? We have almost retraced 0.61% in 15 days, which I told you. And the icing on the cake, आप सबने पढ़ा होगा, TCS announces another buyback. TCS ने लास्ट ईयर बायबैक किया था 3,000 के भाव में, जब भाव 2700 था, और आज 3839 पे वो बायबैक कर रहा है। Last buyback was 18,000 crore. So you can imagine TCS in the last 3 buybacks has returned almost 50,000 crore to its shareholders. Now this is only good news. इसका मतलब IT and IT enabled services are in a very, very fine shape. Globally, outsourcing, work from home has worked brilliantly for them. आपका Bank Nifty was a weak casualty and it fell all the way from 41,000 to 34,000, which was almost a 19% correction, but the pullback is equally sharp. We have recovered 4,000 points in the last 10 days. I think banks are in a very sweet spot. अब 3 overhangs hai. A, rise in US bonds on the back of tapering and rate hike, which goes hand in hand with what the Fed and the global markets are going to decide on inflation. Inflation, आप सबको पता है, growth will only return if there is growth, there has to be inflation. Secondly, remember, from 2003 to 2017, there was, I think, 2009, there were 17 rate hikes. Markets only went up. So markets price in the rate hikes just before the decision comes. Ek bari it gets priced in, the markets look forward. Same is the case with the Dow, same is the case with the Nasdaq. Aapne dekha hai, Dow and Nasdaq have hit new highs, though the Nasdaq has corrected 8 times out of 9 in the last 10 days, all because of rise in yields. Yields have hit 1.73, which in the US means that smarter money is buying debt. But ये एक temporary phenomena है. अगर Omicron के cases यहाँ रहे, तो I would again expect the Fed to be accommodative. 2, Omicron is the unknown variable, where most people tell me that थोड़ा और है, that Omicron is not as what we called as dangerous as Delta. It's very mild. And from a few friends, जो मेरे दोस्त यार जिनको कईयों को हुआ भी है, उन्होंने कहा 2 दिन का बुखार, 2 दिन बॉडी एक, और 6 दिन में वो ठीक हो गए हैं. तो गॉड विलिंग, भगवान करे हमारे यहाँ भी ये जल्दी निकल जाए, लेकिन नंबर्स अभी हमारे यहाँ बढ़ेंगे, और उसका कोई दो राय नहीं कि आपको प्रिकॉशन और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. अब मैं आता हूँ मार्केट पे. आज ये जो TCS ने नंबर बताए हैं और जो हमें अब रिटेल का फ्लोज दिख रहे हैं, मुझे ये पक्का है कि इंडिया will again be a standout market at least for the next quarter, mainly because pre-budget buying, secondly the budget, and thirdly FIs ने जितना माल बेचा, अगर वो 30% भी लेंगे तो new highs are here. तो मेरी भविष्यवाणी या मेरी आउटलुक ये है कि पहले आपको सरप्राइज आएगा on the upside. That means we can well extend into 21,000 and beyond by the end of April. Now end of April is 4 months. We will have a budget before that. Budget, according to me, will be pro-growth. It will manage the deficit. It may increase spending. But ये सब एक दिन का event है. Last budget was a standout. तो बजट के ऊपर बात बाद में होगी. पहले तो बात कीजिए आप ओनरशिप की, आप स्टॉक सिलेक्शन की. आप सबको पता है कि जैसे अभी अतुल जी ने जिक्र किया, ESG has become a very big constituent of stock selection, of stock ownership. And rightly or wrongly, India is also in the realm of increasing carbon credits. आपने देखा है, even our specialty chemicals companies have performed brilliantly on that front, particularly the likes of SRF, Atul, and so on. तो ये एक ongoing score है. ITC ने अपने आप indicate किया है कि sooner rather than later, once they get the go ahead from the parent, there could be a demerger of the cigarette business from the FMCG business. I still think ITC is a very good bet despite the ESG overhang, because their FMCG business, their ITC Haryali, the other businesses are doing very well, particularly the paper and the the hotel business. वो सब धीरे-धीरे are coming back on stream. What is the other constituent? आपने देखा IT has been a bellwether, more to do with growth, being cash rich, and like I said, work from home has helped in reducing costs.
तो पहली बात तो ये है कि अगर शेयर बाजार में आपने रहना है तो इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इसमें ये कोई दो राय नहीं, करेक्शन जो आई थी वो काफी स्ट्रांग थी और मिड कैप्स में डैमेज हुआ है, बट ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप 8,000 से 18,000 2 साल में जाओगे तो 16,000 भी आएगा, हो सकता है ये वापस 16,000 टेस्ट हो। मुझे नहीं लगता ये 16,000 यहाँ से ब्रीच होएगा। ये 16,400 इज अ वेरी क्रिटिकल नंबर, इट्स ऑलमोस्ट 0.38% और 38% रिट्रेसमेंट ऑफ द इंटायर रैली। और मुझे लगता है यहाँ से एक बारी के लिए न्यू हाई जरूर आएगा बिफोर द बजट और मे बी आफ्टर दैट, बट माय कॉल इज, and I'm putting my head out again, by the end of April, first week of May, you will see 21.5, 22,000, which is a sharp rally, which means यहाँ से आपके पास 3,000 पॉइंट की बढ़ने की उम्मीद है। जो 20% इंडेक्स पे है तो स्टॉक क्या करेंगे, उसके 3 कारण है। एक, हमारे यहाँ वेंजन स्पेंडिंग वाज जस्ट स्टार्टिंग जब से ओमिक्रॉन आया है। अभी भी मैं आपको बताऊं, प्लेनों में, एयरपोर्टों में कोई रुकावट नहीं है, वहां पे रश उसी तरह से है जैसे मैंने इमेजिन नहीं किया था। होटलों में कमरे नहीं मिल रहे और लोगों में फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि जैसे ही ये इसका वेव जो 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 आपने हिस्टोरिकली देखा है, साउथ अफ्रीका जहां सबसे पहले हुआ था, द वैक्सीनेटेड रेट वाज द लोएस्ट and it came and it peaked very fast, meaning it goes up very fast but it peaks also very fast, and it had minimum amount of hospitalization and death. Now in India we have to wait for time. Hopefully that's what the statistics are telling us from IIT, that by the first week of February you will start to see decline from the peak. So fingers crossed. मुझे लगता है कि जैसे ये होएगा, व्यंजन स्पेंडिंग, घर वाले बाहर निकलना, खर्चा, बाइंग, वो सब ऐड करेगा। 2, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑन PSUs इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। एंड फोर्थली, इंडस्ट्री अंडरलैग कर रहा था वो ऑटोज थी और वो वापस आ रही है। आपने देखा है मारुति अब EVs में है, सेमीकंडक्टर की इश्यूज शुड बी सॉर्टेड आउट इन द नेक्स्ट 3 months, और इस कारण से जो 2-2 लाख शेयर की 2 लाख गाड़ियों की वेटिंग है वो अगर ईज होने लगी तो आप अपने आप सोच सकते हैं बैंक्स थ्रू फंडिंग एंड ऑटोज थ्रू OEMs विल सी अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। अब उसके सामने एक दीवार आ गई जो हम सबने नहीं सोचा था, और वो था, आप सबने टिप्पणी कर ली क्रिप्टो पे, और हाउ क्रिप्टो हैज टर्न्ड अराउंड द एंटायर इंडस्ट्री एंड हाउ स्पेकुलेशन has now got into you. So you are not worried about आपको 11% इंडेक्स में घबराहट नहीं है, आपको क्रिप्टो पे 40% डेली वॉलेटिलिटी हर्ट करती है, नॉट आपको बट वर्ल्ड को। So actually crypto has been the one which is the volatile asset. Now there is a divided opinion, either you own it or not. तो शादी का लड्डू है, जिसने खाया वो पछता है, जिसने नहीं खाया वो भी पछता है, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तीसरा जो अननोन आ गया वो आ गया कि आपने पेटीएम और जोमेटो दोनों को 1-1 लाख का मार्केट कैप दे दिया, या वो नाइका। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि न्यू एज फिनटेक डिजिटल विल बी 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, जो बाकी कंपनियों को 30 साल लगे वो यहाँ 10 महीने में होने लगा। और मैं आपसे जिक्र करता हूं कि FI सेलिंग जो 1 लाख करोड़ की आई वो इसलिए आई क्योंकि उन गधों ने दबा के इन शेयरों में इन्वेस्ट किया है। गधे इसलिए कहता हूं कि गधों के सींग नहीं होते। आई वर्क फॉर देम सो आई नो व्हाट ग्रीड एंड फियर इज। यही जो बेच के जा रहे हैं ये 18,500 पे दबा के खरीद के जाएंगे। तो याद रखना, जब आपको उनकी इतनी बड़ी बिकवाली से वीकनेस दिखती है, फियर आता है, वही लेने का समय है। 7,500 का इंडेक्स क्यों हुआ था? It was all because of the foreign over ownership and selling. They are the first to crack under fear. You people or Indians by nature are extremely resilient. आप तो हवा भी, गंदी हवा भी सह जाते हो, गंदा पानी भी पी लेते हो और फिर भी आपकी सेहत अच्छी रहती है। ये सब आपकी, हमारे जो अनुष्ठाएं हैं, हमारे जो पुरुषों जो आपके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं और भगवान की मेहर है, वो सब आपको आगे रखती है। FIs are not the dictators. They have lost money in the primary market, and to make that up, they have had to balance their books. Now they are saying China is attractive and XYZ. Chinese market is down 33%. So I have no two words but to say that the smart money has already made a killing, and the smart money will continue to make a killing till we don't get to highs. I know it's very easy to say, but you will only participate in this market जब 18,500 टपेगा। 16,500 पे आप में लेने के लिए पैसे थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी,
18,500 पे आपसे बाहर नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि पैसा भी बोलेगा और सामने से हवा भी ऐसी आएगी। इसको कहते हैं शेयर बाजार, और इसको कोई तीसरा वर्ड नहीं है कहने के लिए। आपने सही जिक्र किया, 16,500 पे सिर्फ मंदी वाले थे, 18,500 पे सिर्फ तेजी वाले आएंगे। ये मार्केट की डायनामिक्स है, ये मैं और आप नहीं चेंज कर सकते। देविंदर जी, इसमें तो उम्र हो गई मुझे देखते हुए। तो ग्रीड एंड फियर आर रिजाइडिंग इन ऑल ऑफ अस, नॉट इन द मार्केट। हम ही उस मौके को चौका बनाते हैं, और इस कारण से मार्केट। सो यू कैन इमेजिन कि 2 महीने की फॉल जो थी 19 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक, वो 2200 पॉइंट की थी, और उसमें से जो पुल बैक आया है वो 0.61% 14-15 दिन में आ गया। आपने देखा है 5 दिन में एक बहुत स्मार्ट रैली आई। और मैं जिक्र करता हूं कि डाउ 2-3 दिन से नैस्डैक वीक है, लेकिन वी हैव बीन रेजिलिएंट। तो आई थिंक foreign allocations to India are going to be on the upside. A, B, the strength of the economy is that the retail investor is putting his money in SIPs. 11,000 करोड़ की SIP देविंदर जी नवंबर में महीने में आई, और दिसंबर में 11,000 करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है। अब ये या तो नंबर सही नहीं है या मेरे कॉल गलत है। ओमिक्रॉन की तीसरी चीज ये थी, मैंने 10 दिन पहले कहा कि फ्रांस, यूके एंड डाउ आर हिटिंग न्यू हाईज, जहां सबसे ज्यादा रेट बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो रेट भी नहीं बढ़े और हम नीचे घट रहे हैं। So I have no two words but to say that you have to be invested. Earnings is what all chartered accountants will look for: EBITDA margins and cost pressures. From the numbers of DMart and the numbers expected in this week from a lot of the banks, I would expect that consumer stocks have told us with lever indicating that they have never seen this type of inflation. Inflation is definitely going to hurt, but margins will make up for that. Or inflation may be temporary, because I think once the supply chain gets organized, जो कि constant disruptions cause problem in supply chain. एक बारी supply chain ठीक हो गई जो 2-3 महीने में, तो inflation will start to moderate. A, B, in India the crop has been good, the rainfall has been good, and we think that with oil prices remaining reasonably in a band of 70 and 80, we should be in a sweet spot. Our rupee has been rather resilient, और वो इसलिए है कि डॉलर कल almost 6 weeks की रैली के बाद पहली बारी 2 दिन के लिए घटा है, और मुझे अब डॉलर में वीकनेस दिखती है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में स्ट्रेंथ, सेकेंडली रिटर्न ऑफ एफआई, 3 कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी द मेन थिंग, क्योंकि रिजल्ट्स के ऊपर आप वैल्यूएशन देते हैं और रिजल्ट से ही मार्केट के अंडरटोन में बदलाव आता है। मुझे लगता है some of the banks will come out with stellar numbers, cost of money is the lowest, और जो मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे वापस आ रही है। साथ में अब सब फ्रॉम PSUs to large corporate banks have all turned more towards the retail side, and I am very, very sure that 41,000 is going to be revisited on the bank nifty, and that will be the one which will lead along with IT. TCS ने केक दे दिया आपको बता के कि वो वापस बायबैक कर रहा है, और वो एक स्ट्रेंथ की निशानी है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे शेयरों में बना रहना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन मार्केट को छोड़िए मत, क्योंकि अगर 22,000 आएगा और बैंक निफ्टी न्यू हाई जाएगा तो फिर आप में चेष्टा होएगी टू चेस द मार्केट। मार्केट चेस मत करिए, मार्केट में बने रहिए। मुझे 30 साल हो गए, ट्रेडर एंट्री करता है और निकल सकता है, लेकिन इन्वेस्टर वापस कभी नहीं आता। जिसने इन्फोसिस किसी भी भाव बेच दिया हो उससे वापस खरीदा नहीं गया। उसके लिए सिंपल रीजन ये है कि देविंदर जी, इन्फोसिस का IPO 1993 में 93 पे आया था, माने 10,000 रुपए के आपको 100 शेयर मिले थे, सिर्फ 10,000 के, माने 100 into 100। आज 93 के बाद आज आप 22 और 8, 22 और 7, 29 साल हो गए। Can you believe what Infosys market value that 10,000 rupees is? That 10,000 rupees is 4.31 crores। 10,000 रुपए 4.25 करोड़ हो गए। आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या आप बैठ सके? नहीं, आपसे बैठा नहीं गया। जब वो 5 लाख या 10 लाख हुआ, आपने वो बेच के JP, यूनिटेक और सुजलॉन इकट्ठा कर लिया, उस पे आप बैठे हुए हो, लेकिन इन्फोसिस नहीं बैठा गया। ये शेयर बाजार की हिस्ट्री है कि ब्लू चिप्स हैव ऑलवेज रिवॉर्डेड ओनली बाय बीइंग इन्वेस्टेड। सोने का भाव क्यों 50,000 है? वो इसलिए
क्योंकि आपके घर में जो लक्ष्मी का रूप है उन्होंने बचा के रखा। जमीन क्यों है? क्योंकि आपके सर के ऊपर छत है। और इस कारण से स्टॉक्स में इमीडिएटली सिर्फ ट्रेडर अंदर बाहर होते हैं, इन्वेस्टर वही कमाएगा जिसने शेयर लेके रखा है। तो 30 साल रखना शेयर को, उस पे बैठना, वही रियल टेस्ट ऑफ टाइम है इन्वेस्टर के लिए। और अभी तो इंडिया शुरुआत पे है सर, तो वी कैन हैव टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स ऑन maybe a little bit of rate hike, or who complains? The yields are still at 1.73, our yields are not crossing. So I think equity as in a growth parameter, as in an Indian context, seems to be in a very, very good spot. We've undergone a smart correction. We will look stretched at 19-20,000, but that's the way the market is. Valuations will be little stressed, but Indians, we expect world looks at forward earning, not backward earning. आज अगर आप पेटीएम, जोमेटो को 10 साल की अर्निंग्स का फेवर देते हो, तो इंडियन मार्केट में टाटा स्टील को भी तो देखो ना, या सेल को देखिए। सेल ट्रेड्स एट जस्ट 3 times the earnings it has given for this year. So why shouldn't sale be at 150 rather than 105? This is the question. मैं कुछ अब सवाल जवाब भी ले लूंगा, और आपसे और कोई टिप्पणी हो तो करे, बट मैं आप सबको गुड हेल्थ, गुड वेल्थ और हैप्पीनेस देता हूँ, के लिए आपके लिए कामना करता हूँ। और याद रखना, जब 22,000 आएगा तो मुझे भूल मत जाना। अप्रैल का महीना ज्यादा दूर नहीं है, अप्रैल मई में, उस समय फिर आपसे कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपसे आशीर्वाद लेंगे। सर थैंक यू संजीव सर। आपका जब आप बोलते हैं तो सब लोग निशब्द होके सुनते रह जाते हैं। और तो आप सबसे जब आप धारा प्रवाह जिस तरह से आप बोलते हैं, तो हम सब निशब्द होके आपको सुनते रह जाते हैं। और जो स्टॉक मार्केट पे आपका एक्सपीरियंस है पिछले 1.5 साल से 2 साल से, तो मैं आपको रेगुलरली सुनता हूं। तो इसीलिए बड़ी इच्छा थी कि इसको आप हमारे CIRC के प्लेटफॉर्म पे हम आपको एक बार लेके आए। आपने हमारी पहली बार जो मैंने आपको मैसेज किया और आपने एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की काफी सारी क्वेरीज है, तो आज हमने सेशन को इसीलिए रिक्वेस्ट करी थी संजीव बसिन सर को कि सर आप सेशन छोटा रखें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स की इंडिविजुअल बहुत सारी रिक्वेस्ट है, वो हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मेहता जी का क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ मर्जर ऑफ IDFC इनटू IDFC फर्स्ट बैंक, when it will take place, and thereafter how IDFC first bank look value wise? Yeah, very very good question, and this is what was in the offing. और आपने देखा IDFC, the parent company has already hit a new high. A parent company is the holding company of the AIF, of the AMC, of the all the other businesses, but dividend income was only sole earner. तो उसकी valuation बहुत सस्ती थी। IDFC की AMC is one of the in the top 5, और मुझे लगता है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो मर्जर के बाद IDFC Bank, and that will become a complete workshop just like a Kotak Bank or anything else. IDFC First जो बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर वैद्यनाथन, आई थिंक आर्ग्यूबली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो एक वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स है जो ICICI से आए, और उन्होंने पूरा टर्न आउट कर दिया है। आपको शायद अचंभा होए कि इस क्वार्टर के लिए उनके निम 2 क्वार्टर में 5.3 द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। उनकी जो एसेट बुक ऑन रिटेल है, जो पहले 30-70 होती थी, अब 70-30 हो गई है। रिटेल लेंडिंग और रिटेल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लोन बुक इज 70%, एंड द MSME एंड द अदर बिजनेस हैव गॉन डाउन टू 30। वो भी इस कारण से क्योंकि लेगेसी थी। मुझे कोई दो राय नहीं कहने में कि अगले 2-3 साल में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। कितना टाइम लगेगा ये तो आपको पता है, इट विल गो टू SEBI एंड नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल्स, वो सब थोड़ा 6-8 महीने लग सकते हैं, बट प्लीज होल्ड दिस स्टॉक एंड यूज डिक्लाइंस टू ऐड। तो सर आपकी के रिप्लाई से एक और क्वेश्चन बनता है, सर विच वन इज बेनिफिशियल, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक? So I think initially it will definitely benefit more to IDFC, but there will be a ratio which you will get. तो आप जौन सा भी own करते हैं, you will be benefited by the ratio. IDFC has hit a new 52-week 3-year high. तो मुझे कोई दो राय नहीं कि वो भी बढ़ने वाला है। आप इसमें 2 साल में ट्रिपल डिजिट जरूर देखेंगे।
ओके सर, एक और क्वेश्चन है सर। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमारे ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट सर ने कहा था कि जो एनवायरनमेंट के जो कंसर्न्स आ रहे हैं, जो हमारे सोशल और गवर्नेंस के कंसर्न है, जिसकी वजह से वो आईटीसी का शेयर नहीं चल पा रहा है, तो उसी पे नेक्स्ट क्वेरी है हमारी। आईटीसी एंड आईडीबीआई इन्वेस्टमेंट ऑन दीज शेयर्स वुड शुड। तो देखिए आईटीसी, जैसे मैंने आपको कहा, वो डिपेंड करता है पेरेंट कंपनी कितनी जल्दी माने कि वो स्प्लिट करें या मर्जर को डीमर्ज के लिए तैयारी करें। सिगरेट बिजनेस आपको पता है अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, इट इज लेस देन 63%। उनके बाकी बिजनेसेस आईटीसी, हरियाली, एफएमसीजी, आपको पता है स्टारबक्स का जितना आप कॉफी जिसमें भी पीते हैं वो सारा कागज आईटीसी भद्राचलम से आता है। उनके जो बाकी बिजनेसेस हैं ऑल ऑफ देम आर डूइंग ब्रिलियंटली। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट है, लेकिन स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म। और मेरे को लगता है मैनेजमेंट इज टेकिंग स्टेप्स वेयर दे शुड एनहांस और विल एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू। उन्होंने पहले भी बता दिया है कि बाय 2025 आईटीसी 1 लाख करोड़ का एफएमसीजी बिजनेस करेगी। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि ईएसजी का थोड़ा सा ओवरहैंग है जो कंपनी एड्रेस करेगी, लेकिन फिर आपको या तो भाव सस्ता मिलेगा या माहौल मिलेगा, दोनों चीजें मिल नहीं सकती। अगर 16,400 आया था तो पैनिक था, तभी पैसे बनाओगे। पैसे और सब कुछ इकट्ठा मिले तो देविंदर जी फिर शेयर बाजार थोड़ी होएगा। डेफिनेटली सर, तो हम भी कई सालों से देखते आ रहे हैं, और आईटीसी आपको एफडी के रिटर्न के बराबर रिटर्न तो आज ऑलरेडी दे ही रहा है। तो आप इसको, आपकी कैपिटल डिविडेंड तो पीएसयू सेक्टर भी देता है, बट उसमें आपकी कैपिटल इरोड हो जाती है। इसमें कम से कम आपकी कैपिटल फ्रीज है और आप अपना एफडी के बराबर रिटर्न ले रहे हैं। और जब भी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, या जब भी जैसे सिगरेट सेक्टर अलग हुआ या डिमर्जर हुआ, उस दिन हो सकता है आपको 2 गुना 3 गुना भाव मिले और फिर आप एंटर न कर पाए। तो आप स्टे इन्वेस्टेड, आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी। देन सेकंड क्वेरी है सर आईडीबीआई पे। आईडीबीआई पे आपके व्यूज। तो देखिए आईडीबीआई वाज अ स्टील एट 24-25, अब 55 रुपए का भाव हो चुका है। मुझे आज भी बताया, जो मैंने ये कहा था 25-30 रुपए में, उस समय जो मेरी मैनेजमेंट से व्यू हुई थी, उन्होंने बताया था, मैं आपको डिस्क्लोजर देता हूं देविंदर जी, मैं बॉम्बे गया, मैं इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के उनके सीजीएम से मिला। उन्होंने कहा कि हमारी वर्कफोर्स 25 साल से नीचे वाली सबसे ज्यादा है, लोएस्ट एज वर्कफोर्स है जो हमारे पास एमबीएस आ रहे हैं। और ये एक मिसक्रिएंट है कि पीएसयूज कांट बी चेंज, पीएसयूज हैव अडॉप्टेड चेंज। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन से 25-26 साल के एमबीएस लिए हैं और टोटल रिवैम्प हुआ है। मुझे कोई दो राय नहीं कि ये दोनों बैंक यहाँ से टर्न अराउंड है। सूनर रादर देन लेटर गवर्नमेंट का जो स्टेक है एलआईसी विल गेट सोल्ड, बट 25 और 55 रुपए में बहुत फर्क है। आई स्टिल थिंक इसका भाव 75 रुपए तक जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ रादर देन आईडीबीआई 55 रुपए, आई वुड रिकमेंड बैंक ऑफ बड़ौदा एट 80। वो मुझे 125 या 130 का भाव जरूर दिखता है इन दिस ईयर। आपने सर बैंक ऑफ बड़ौदा का कहा, तो उसी पे एक काउंटर क्वेश्चन आता है सर, व्हाट अबाउट पंजाब नेशनल बैंक? सर ये तो लगभग आपको भला ही नहीं है, जबकि दूसरे सभी बैंक बढ़ गए हैं। और पंजाब नेशनल बैंक, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का वर्किंग स्टाइल लगभग सिमिलर सा है। ऑल आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मेजोरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, और बहुत माइनर सा स्टेक बाहर है। और जितना होना था, जो चाहे मिरल का जितने एपिसोड फ्रॉड जो भी होने थे, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं और ऑलरेडी उनको प्रोवाइड किया जा चुका है। अब तो उनमें से रिकवरी होनी है। जैसे कल ही परसों कुछ खबर आई थी कि बैड बैंक में जो एनपीए अकाउंट ट्रांसफर होंगे, उसके बदले में 15% अपफ्रंट आपको कैश मिल जाएगा, तो वो सीधा नेट प्रॉफिट आने वाला है। और चूंकि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ सुन रहे हैं, वो सारे लोग बैंकिंग को अच्छे से समझते हैं, और जितना हम प्रोविजन कर चुके हैं उसके अगेंस्ट सारे लोन तो हमारे अनसिक्योर्ड नहीं है, उनमें ज्यादातर में हमारे पास सिक्योरिटी है। वो सरफेसी एक्ट में या दूसरे एक्ट में लीगल रिकवरी होगी, तो आने वाले 2-3 साल में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आना है। तो व्हाट इज योर व्यूज ऑन पीएनबी? 100% सर, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, तीनों बाय है। मेरा डार्क हॉर्स यहाँ पे इस साल के लिए है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक 42 और 45 में इकट्ठा कीजिए, एक 85 से 90 रुपए का भाव। तो इनमें कोई भी आप कह रहे हैं, आप पीएनबी कहें, आईडीबीआई लेके रख लिए, लेकिन इस साल का स्टार होगा यूनियन बैंक।
डेफिनेटली सर, उसमें लग भी रहा है। अगर आप टेक्निकल मूवमेंट और उन सब चीजों को देखते हैं तो ये पंजाब नेशनल बैंक से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन दिनों। एक और हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, मणिकांता नंबूरी जी। हमारे सर, मैं एक आपको बता दूं सर, हमारे इस प्रोग्राम को दुबई से, यूएई, शारजाह, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सभी तरह से लोग व्यूअर्स हैं। पंकज जी हमारे रांची से जुड़े हुए हैं, अतुल अग्रवाल जी नोएडा से जुड़े हुए हैं, हमारे चेयरमैन सर इसको ग्वालियर से अटेंड कर रहे हैं, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। तो सारे अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग इस सेमिनार में जुड़े हुए हैं। तो मणिकांता जी का क्वेश्चन है सर, आई डू यू एक्सपेक्ट वी टच 16,000 सून? IT not good for 4 days, even US IT index stopped move up. How do you rate about the small IT stocks to behave? Is any budget move started already? Looks VIX behaving like drunk. So please clear our doubt. सर वो तो मैंने शुरुआत में कह दिया, दे विल ऑब्वियसली बी अ डिवाइडेड ओपिनियन। यू सॉ अ शार्प फॉल टू 16,400, यू सीन एन इक्वली शार्प राइज। अब जो आदमियों ने राइज में पार्टिसिपेट नहीं किया वो वापस बोलेंगे 16,000 आ जाए तो मेरे को माल मिल जाए, और जो अब देखते रह गए तो वो तो बाहर ही बैठेंगे। इसके लिए कोई पता नहीं, उसने पी ली नहीं पी ली, तो पीता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। मुझे तो क्रिप्टो में लगता है ड्रंक ज्यादा लोग होते हैं। सो आई एम नॉट ऑफ ओपिनियन, आई डोंट थिंक 16,000 इज कमिंग बिफोर द बजट। आई वुड रादर लुक फॉर अ न्यू हाई, एंड my outlook for end of April, remember, read my lips, first week of May is 22,000. So please don't look for these 300, 400, 500 points up down. Try and make a portfolio because markets will surprise you on the upside. तो हमारे व्यूअर्स को एक है, अगर ये सीए की नहीं और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो कल की ताजा हेडलाइन होती, संजीव बशीन सर ने कहा मार्केट जाएगा 22,000। पर ये चूंकि हम लोगों का प्रोफेशनल फोरम है तो उस पर हम आगे चलते हैं। हमारा एक और क्वेश्चन आया सर, डू यू फाइंड एनी स्क्रिप्ट विच आर हाईली अंडरवैल्यूड अदर देन लाइक आईटीसी? So even the banks, आपको एक छोटा सा ट्विटर पर रिप्लाई देता हूँ, वो कहते हैं ओनली स्टॉक विच हैज आउटबीटन एचडीएफसी बैंक इज आईटीसी। तो एचडीएफसी बैंक ने साल में कुछ नहीं किया, ईयरली रिटर्न में आईटीसी हैज बीटन एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक वेंट थ्रू अ ट्रांजिशन, यू नो दैट द चेयरमैन इतने साल से जो थे मिस्टर आदित्य पुरी, उनके बाद नया बैंक। सो आई थिंक बैंक्स में बहुत अंडर वैल्यूएशन है और वहां से आउट परफॉर्मेंस आएगी। मगर जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी इटसेल्फ गिव्स यू अ गुड कॉन्डूट। मुझे कुछ ऑटो स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आईटीसी आपने कहा, मुझे हीरो मोटो इस भाव पे बहुत पसंद है। सिंपल चीज, आज हीरो मोटो इज फुली इन्वेस्टेड इन एथर एनर्जी व्हिच मेक्स टू व्हीलर ईवीज। Ether Energy has sold more scooters than even Ola, and the valuation is extremely cheap. और मुझे लगता है Hero Moto will be the fastest to rebound once the semiconductor and rural incomes again come back on stream. तो इस भाव पे 23,500-2400 रुपए में अगर आप सिप करें हीरो मोटो में, मुझे 3200 का भाव इसी साल दिवाली तक दिखता है। सर एक और हमारे व्यूअर्स हैं, अशोक मेहता जी का क्वेश्चन है सर, व्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बीपीसीएल। BPCL, HPCL are giving you a very good entry point. Dark horse could be IOC, but the outperformer is ONGC and Oil India. इनका बास्केट लीजिए, CPSE ETF लीजिए, इनमें ये है, नहीं तो एक बास्केट बनाइए ऑफ PSU, OMC stroke oil companies, you will make money. ONGC has just given you a fresh breakout. और आपको बताऊं देविंदर जी, लास्ट ईयर ONGC सितंबर के महीने में 75 रुपए के भाव पे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। मैंने लिख के दिया, the cheapest energy stock in the world is ONGC, और आज देखिए वो 75 वाला 150 है, और अभी वो कह रहे हैं 175 180 का टारगेट। PSUs में आउट परफॉर्मेंस है, चाहे वो गेल है, चाहे वो BPCL है, चाहे HPCL, लेकिन आप इनमें बास्केट बनाइए, 5-6 नाम लेंगे तो बेटर रहेगा रादर देन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सिंगल नेम। श्री तिवारी जी का पहले तो उन्होंने आपको ग्रेट टू सी यू हियर सर, वुड लाइक टू आस्क यू two question. One is your views on valuation of new gen fintech company as there is no earning, and number 2, any book you personally recommend to read? So books, there are a lot. आप जाएंगे, you will see a lot of books which you can read, whether you are a technical trader or
but I think Peter Lynch is the one which I follow. His books were very, very well written. He's of course been the biggest bull of the market for the American markets. On the valuation, आपने कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन था सर? एक सेकेंड. वैल्यूएशन ऑफ न्यू जनरेशन फिनटेक कंपनी. नहीं, उसपे आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज मैं उस जनरेशन से नहीं हूँ. मेरे को आप एसीसी अल्ट्राटेक के नंबर पूछो तो मैं हैंड्स बताऊं 115 मिलियन टन की कैपेसिटी है. न्यू एज बिजनेसेस में 5% या 10% कैपिटल जरूर कमिट कीजिए, क्योंकि सम ऑफ देम कैन बी डार्क हॉर्सेस. अगर आप जोमेटो नहीं लिया जाता तो नौकरी में जरूर हाथ डालिए. वो उसकी जो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, एंड आई थिंक नौकरी इज वेरी वेल प्राइस्ड एट दीज प्राइसेस. So I think 5-10% of your capital should be in these new age businesses, but purely on a parameter कि आप 5 साल होल्ड कर सके. देखिए देविंदर जी, एक और आपको पॉलिसी बताऊं. 18,500 पे सिर्फ लोग बाग 5 साल के शेयर बताइए, और 16,500 पे 5 दिन के लिए. तो उल्टा होना चाहिए. 18,500 पे 5 दिन के शेयर, 16,500 में 5 साल के शेयर. ये होनी चाहिए आपकी फिलॉसफी. आप दोनों तरफ बोलेंगे, फिर बोलेंगे भसीन साहब ने मरवा दिया 18,500. 18,500 में मैंने आपको 5 दिन के लिए बोला था, 16,500 में 5 साल के लिए. ये कैसे मैं बदलूं? भाव भगवान छे. यहाँ कोई गुजराती हो तो समझेगा. मेरे को बॉम्बे की लोकल में उन्होंने समझाया, सेठ भाव भगवान छे, भाव भगवान होता है. तो या तो आप भाव से सौदा कर लीजिए या अंडर 9. अल्ट्राटेक, सेल, रिलायंस, L&T, HDFC बैंक, ये 5 शेयर का पोर्टफोलियो बनाओ तो सब फिनटेक को आप भूल जाएंगे, बिकॉज इनमें बिजनेसेस, इनमें पैसा बनना ही बनना है. तो आई थिंक द न्यू एज बिजनेसेस शुड बी 10% ऑफ योर कैपिटल इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट प्लीज डो नॉट लुक फॉर अर्निंग फॉर द नेक्स्ट 3-5 years, बिकॉज इवन आई हैव नो आइडिया व्हाट इट विल डू और विल नॉट डू. एक बहुत ही मूल मंत्र सर ने अपनी बात के साथ कहा, भाव भगवान छे. और जब मंदी आए तब आप इस मार्केट में लगे रहें, मार्केट में आप तब उसको प्रेम करें. और जब तेजी आए तो नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, मंदी में तो सब मार्केट की बात करना छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, अपना जो भी लिक्विड किया पैसा सारा और लिक्विड करके घर ले आते हैं और अपने प्रोफेशन में लग जाते हैं. और जब मार्केट में बहुत तेजी होती है, हमारा क्लाइंट जब कमा के अपना रिटर्न भरवाना आता है, फिर हम सोचते हैं कि साल भर में हमारी अर्निंग से 4 गुना अर्निंग उसकी हो गई, हम भी शेयर मार्केट में चलो चलते हैं, और फिर पता लगता है वहां से नुकसान होता है. तो आप स्टे इन्वेस्टेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे, हमेशा इन्वेस्टर रहे. आप चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, अपनी एक स्ट्रेटेजी को स्टडी करके और लगाएं, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कम से कम बाकी लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होंगे. तो ऐसी मेरी पूरी दृढ़ विश्वास है. तो आप उसी पॉलिसी को फॉलो करें, जैसा कि अभी बशीन सर ने कहा, जब 18,500 का मार्केट हो, आप 5 दिन का नजरिए के साथ इन्वेस्ट करें, और 16,000 का इंडेक्स हो तो 5 साल के साथ ये नजरिए के साथ इन्वेस्ट करें. हमारे नेक्स्ट व्यूअर है आशीष जैन जी का क्वेश्चन है, सर एनी स्टॉक फॉर नेक्स्ट 10 year. सर तो अभी मैंने जिक्र किया 5 नाम, आज को आपको और नाम बताता हूं कि यूनियन बैंक मुझे यहाँ से डबलर दिखता है. आपको और डिस्क्लोजर दूं कि SW सोलर हमने अपने बड़े अच्छे क्लाइंटों को दिला दिया है, ये 380 और 90 के बीच में. रिलायंस एनर्जी ने 375 पे ओपन ऑफर लिया है, 40% स्टेक लिया है. SW Solar is the largest player from Shahpurji Palonji on solar panels. It is the largest player in MEP, mechanical engineering, plumbing play. और मुझे लगता है सोलर एनर्जी पे जिस तरह से गवर्नमेंट का दबाव है, जिस तरह से मार्केट कैप्स है, और जिस तरह रिलायंस का फोरे है, ये शेयर अगले 5 साल में दुगना तिगना भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं. तीसरा मेरा पिक होएगा AB कैपिटल. मैं बहुत बुलिश हूँ. It's a sum play of just like a Bajaj Finance holding capital. AB Capital owns the AMC, the insurance, the AIF, AB Money, और मुझे लगता है वो एक अंडर वैल्यू स्टॉक है. मुझे नई वैली लिग्नाइट में डिविडेंड यील्ड और लिग्नाइट और कोल में जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा लगता है. और मुझे NBCC इस भाव पे बहुत पसंद है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग और Tier 1 Tier 2 में डेवलपमेंट है, उससे NBCC को बहुत बड़ा फायदा होएगा. तो 48-49 में लीजिए, 75 रुपए का भाव. अगर आप 3 साल रखें तो 100 रुपए का आपका पैसा जरूर डबल होएगा. हमारे एक और मित्र हैं रौनक ईनानी जी. उनका क्वेश्चन है, सर संजीव जी, इट वाज वेरी मच एनलाइटनिंग टू हियर यू. You said you are bullish on banking sector.
but being RBI policy to not qualify certain advances as NPA during COVID period, how is it going to affect as per your views? No, these are technical parameters which will come and go. The cost of money for banks has never been cheaper. You've seen all banks report, all banks, including Bandhan, say that the deposit and the credit fraud and the CASA ratio has been the best. Iska matlab, as yields start to become temporary, money will come back into banks. Or agar scare aata hai, to aur aata hai. And banks' cost of capital is at the lowest. I think the next 2 years will purely be on the back of banks making money on better asset quality, better NIMs, and better net interest margin, net interest incomes. Simply because credit is going to expand at a very fast pace. और वो क्रेडिट के 4 कारण हैं. आपने देखा है बैड एसेट्स लाइक पावर, इंफ्रा, स्टील डूइंग द बेस्ट एवर इन द लास्ट 10 years. तो आपकी एनपीएस तो होने ही नहीं चाहिए और वो सब वापसी जो होगी, I think it will be very, very profitable. तो मुझे लगता है State Bank will lead from the front as far as quarterly earnings, and you will follow from ICICI, Axis, and the rest of the bank. So I'm extremely bullish on the banks. I think this temporary, whatever the RBI thing, you are as a chartered accountant more qualified on that. I will not be able to comment, but I think these are small changes. Don't miss the woods for the trees. अगर यहाँ से 2-2.5 लाख क्रेडिट की ग्रोथ, 2-2.5 लाख करोड़ की क्रेडिट ग्रोथ आएगी अगले साल 1.5 साल में, तो आप सोच सकते हो बैंक्स में क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. बिल्कुल ठीक कहा सर, संजीव सर. हमने कई बार मैंने ऑब्जर्व किया, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट इंटेलिजेंट होने का एक नुकसान ये होता है कि हम हर चीज में कमी भी ढूंढ लेते हैं. तो हर चीज में हमें ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये हमें एंटरप्रेन्योर बनने से रोकती है. और हमने कई बार देखा कि जो हमारा क्लाइंट आता है हमें बताता है, हमें उसमें 10 डिफेक्ट भी नजर आते हैं, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर देता है, अपना वेंचर चालू करता है, और 5 साल बाद वो हमसे बहुत आगे निकल के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाता है. तो कहीं न कहीं हमें एक रीजनेबल रिस्क लेनी होगी. आगे हमारा क्वेश्चन है प्रदीप अग्रवाल जी का. सर, पिछले 2 साल में फार्मा सेक्टर ने बहुत परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. 10 साल की जो मंदी थी, जो फार्मा सेक्टर चलता नहीं था, एक डिफेंसिव प्ले था, वो पिछले 2 साल में चला है. तो एक्सेप्ट बायोकॉन, तो व्हाट इज योर व्यूज ऑन बायोकॉन सर? नहीं, I think Biocon will also find its place. It's more dependent on insulin. और उसके जो दूसरी कंपनी है Syngene has done well. अब we know that sooner rather than later pharma companies की re-rating हो गई, but अब market is looking beyond that. तो जब sectoral rotation होती है, money goes into banks, pharma से निकलता है, या money goes into tech तो बैंक से निकलता है, ये एक ongoing procedure है. I still think pharma companies were very, very undervalued 5 years back. They have cash on balance sheets, और कुछ companies like Dr. Reddy's, Cipla, Sun Pharma have outperformed. तो आप market leaders के साथ रहिए. मुझे अभी भी लगता है Sun Pharma is going to get back to 1200. मुझे लगता है Dr. Reddy can go to 7000, और मुझे लगता है Cipla can again go back to 1250, 1300 or more than that. तो leader पे रहिए, नहीं तो एक sip कीजिए in some of the pharma funds like SBI Pharma, SBI Pharma Fund and Nippon Pharm. ये मैंने 2 साल पहले भी कहा था जब कोविड स्टार्ट हुआ था कि फार्मा में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इनका डे एंड द सन इज कम. और आपने देखा वो आउट. बायोकॉन स्पेसिफिकली कोई ऐसी क्वेरी नहीं है. आप मुझे मेल भेजेंगे तो मैं इसके ऊपर आपको और टिप्पणी कर सकूंगा. राजीव सहगल जी का क्वेश्चन है सर, दीपक नाइट्राइट एंड मैक्स वेंचर पे आपके व्यू? नहीं, बहुत आउट परफॉर्मर रहे हैं. मैक्स वेंचर हमने 35 रुपए पे कहा था, अब तो 4 गुना हो गया. और दीपक नाइट्रेट तो आपने देखा ही है कि it has been one of the best play because of the phenol brand and so on. तो अभी इनमें चेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि they have already run up quite a bit, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है स्पेशलिटी केमिकल्स और सो में. तो I would not recommend here, but I still think they are in a very, very sweet spot as far as the businesses go. अभी मैंने जो आपको रेकमेंड किए वो स्टॉक्स अच्छे हैं. मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ एज ए डिस्क्लोजर के ब्रोकरेज and related to market like AMCs, brokerage stocks, CDSL, ये सब बहुत बढ़िया करेंगे. BSE क्योंकि NSE की लिस्टिंग है, तो आपको उनमें बनना चाहिए जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. अब शेयर बाजार ऊपर जाए नीचे जाए हमें नहीं फर्क पड़ता. हमारे यहाँ तो पार्टिसिपेशन और इनकम्स आर सीइंग वेरी, वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी. तो उन शेयरों में रहिए. आपको AB कैपिटल का है. मैं यहाँ एक और शेयर कहूंगा जो इनकी AMC है, ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ,
वो एएमसी थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री है और इशू प्राइस 712 रुपए था, स्टॉक का भाव 550 है। मुझे लगता है इसका भाव 2 साल में 1000 रुपए होगा, सिंपली बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो मैनी फोल्ड। अगर आपके यहाँ 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है और वो 16 करोड़ हो गए तो पार्टिसिपेशन आप सोचिए 2 साल में क्या जाएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। मैं एक व्यूअर्स का पहले एक बार एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि ताकि सब व्यूअर्स को पूछने का मौका मिले, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वो अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में डाल दे क्योंकि ऑलरेडी इतने क्वेश्चन Q&A में आ रहा है, चैट तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो फ्लड सा आ रहा है क्वेश्चन का, इसीलिए हमने आज समय ज्यादा रखा है क्वेश्चन आंसर का। कमल गर्ग जी का क्वेश्चन है सर, आरबीएल बैंक बड़ी कहानी है सर, क्या बताएं। भाव का भाव आरबीआई ने अपने ये एक मूव से कर दिया, जबकि ऐसा कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं था। उनके डिपॉजिट्स, उनके टियर 1 कैपिटल सब कुछ वेल इनकाउंट है, लेकिन सक्सेशन के इशू पे इतना बड़ा ये करना बवाल आई थिंक वाज मोस्ट अनवारंटेड। So I see any repeat of a yes bank or other thing. Their assets are secure, their book is good. They went through the problem in COVID because of the MSME sector. But from what I know of the management, I am very confident of Rajiv Ahuja and the succession plan. But like I said, technically it is looking weak. I would advise you to buy RBL Bank only if it closes above 160 for 1 week. एक हफ्ते के लिए 160 के ऊपर जाए तब लीजिए, और नहीं तो सिप कीजिए, लेकिन बने रहिए। sooner rather than later, once the succession plan is there, this bank will also start to do well. Management has indicated that in this quarter the results will be better than in the last 4, and next quarter onwards they'll be back to pre-COVID levels. ममता गांधी जी का क्वेश्चन है सर, आलोक इंडस्ट्रीज फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 2 years। नहीं, अब ये तो बिल्कुल स्मॉल कैप थे जो बहुत बढ़ चुके हैं। आलोक गॉट बॉट बाय रिलायंस। टेक्सटाइल इज इन अ वेरी स्वीट बिजनेस। मैं यहाँ पे पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। मुझे नाहर स्पिनिंग, मोंटी कार्लो, बहुत वो मल्टी बैगर्स हो गए। अभी भी मैं सोचता हूँ राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स इज अ वेरी गुड प्ले, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन वो मैंने 350 पे कहा था, अभी 455 460 का भाव है, लेकिन इसका भाव 700 जा सकता है। आलोक इंडस्ट्री पे क्योंकि वो छोटा स्टॉक है और मर्ज हो गया, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। चूंकि टेक्सटाइल पे बात चली है सर, तो इसी पे हमारे पिछली जो हमने सीरीज करी थी उसमें निकल के आया था एक काइटेक्स का शेयर, काइटेक्स इंडस्ट्री, उस पे आपके क्या भी? हाँ, काइटेक्स इज आल्सो, मैंने कहा ना सर, टेक्सटाइल तो सबसे अच्छे स्पॉट पे है। आप मान नहीं सकते, नाहर स्पिनिंग का भाव 90 रुपए था, मोंटी कार्लो का 150 रुपए, आज वो 5 टाइम्स हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि जिस तरह की अब ग्रोथ आ रही है। साथ में यूएस ने चाइना के ऊपर बैन लगा दिया ऑन टेक्सटाइल, तो इंडिया बिकम्स अ वेरी स्वीट स्पॉट। ट्राइडेंट का भाव 8 रुपए था, आज 55 रुपए हो गया। इट्स अ 450% गेनर, और मैं कह नहीं सकता कि वो ट्राइडेंट इज बोथ इन टेक्सटाइल एंड इन पेपर। अब इस भाव पे कहना बड़ा मुश्किल है। मैं यही कहूंगा कि आप अच्छे शेयरों में सिप कीजिए, 3-4 बड़े नाम ले लीजिए। उसमें राजस्थान स्पिनिंग मुझे अभी भी बहुत अंडरवैल्यूड लगता है। आपने काइटेक्स का है, आपने केपीआर मिल्स का ही है, 2-3 शेयर इनमें से ले लीजिए। आपको ये भी कहूं कि आईटीसी भद्राचलम द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द पल्प मार्केट, और पेपर में उनकी डोमिनेंस है, तो आईटीसी में वो बने रहने का एक और कारण। पेपर इंडस्ट्री से बात चली है तो सर मैं पूछूंगा, पदमजी पेपर एक छोटी कंपनी है। पदमजी पल्प, बिल्कुल, पदमजी पल्प, आईटीसी, ट्राइडेंट, ये सब ने बहुत आउट परफॉर्म किया है, तो आप इनका बास्केट लेके रख सकते हैं या इंडिविजुअली। लेकिन मैं कहता हूं ना, सबसे अच्छा जायंट आईटीसी है, जो आपको डिविडेंड इनकम भी है, जिसमें ग्रोथ भी है, जिसमें डीमर्जर की भी आज नहीं तो 6 महीने या 1 साल में बात आनी है। और अगर मेरा पैसा वहां डबल होने वाला है तो मैं फिर छोटी कंपनियों में क्यों देखूं। मार्केट कैप टू सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ आपके पास आईटीसी में है। बस ये एक थोड़ा ईएसजी का ओवरहैंग है, और वो आज नहीं तो कल मेरे हिसाब से करेक्ट होना ही होना है। गोपाल अग्रवाल जी का क्वेश्चन है सर, वोकार्ड फार्मा परचेज एट ₹800 वे बैक बट नाउ वैल्यू इज 425 फ्रॉम लास्ट 4-5 years, व्हाट शुड वी डू? So Wockhardt went through a lot of problems on the management side, on some of the compliance issues, but now let me be honest, the rumor is that Wockhardt might sell a stake to Serum Institute. अब वो rumor है, सच है, ये तो टाइम बताएगा, मगर 400 रुपए में बेचना मत।
भी लेके रखिए, मुझे लगता है वॉकहार्ट कैन कम बैक टू दोस 550-600 levels, but I would advise you to try and replace that with 3-4 good names like Cipla, Dr. Reddy and Son if you want to be in them, or buy some of the mid caps which you have told. Upon that, we will wait for this. If this rumor turns into fact, if there is something from Serum Institute, then we will know. राहुल बिहानी जी का क्वेश्चन है सर, आई नीड अ व्यूज ऑन बेयर क्रॉप साइंस. Yeah, Bayer Crop Science is a MNC and very well planned. And आप देख ही रहे हैं agrochemicals में we have been one of the better performing sectors. So we still think Rallis, UPL is my top pick there, and Bayer Crop Science of course fits the bill. So I think agrochemicals में तो इंडिया जैसी जगह नहीं है, और आप देख ही चुके हैं कि घर बैठने से खाना पीना ज्यादा पदार्थ में होता है और agrochemicals की ज्यादा डिमांड आई है. तो I think this is a blue chip stock, stay invested. सुमान जी लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, फिर मेरी एक और इंटरव्यू भी है. ओके सर. तो आनंद महेश्वरी जी का क्वेश्चन है सर, प्लीज गिव व्यू ऑन रिलायंस एंड एचडीएफसी एएमसी. दोनों बाय है सर मेरे हिसाब से. रिलायंस ने तो आपको बता दिया, और इस साल में अभी सीएलएसए की रिपोर्ट आई है कि जियो की आईपीओ निकलेगा और उसकी $100 बिलियन की तो उसी की मार्केट कैप है. तो स्टे इन्वेस्टेड इन रिलायंस, नो क्वेश्चन अबाउट दैट. इट इज गोइंग टू गो टू 3000, और अगर इंडेक्स ने 22,000 जाना है तो रिलायंस ने 3,000 से ऊपर जाना है. और एचडीएफसी एएमसी मैंने कहा वो भी लीजिए, और एबीएसएल एएमसी जरूर लीजिए. एबीएसएल एएमसी इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, और मुझे यहाँ से 50% अपसाइड इस साल में दिखता है. एबीएसएल, आदित्य बिरला कैपिटल, एएमसी ऑलरेडी मेरे ख्याल से आईपीओ प्राइस से नीचे प्राइस में आपको मिल रहा है. तो संजीव वसीन सर का कहना है कि वो एक अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है. सुरेंद्र तलेसरा जी का क्वेश्चन है सर, वोडाफोन आइडिया. सर वोडाफोन जिसके पास दम था ना, उसने लिया 5.5-6 रुपए में, और उसने 3 बैगर बना लिया. लेकिन वोडाफोन लेने के लिए चाहिए दम, क्योंकि आपको सिर्फ आएंगे गलत न्यूज. ये इन्होंने कहीं नहीं छोड़ना सर. आदित्य बिरला ग्रुप की सारी कंपनी चमक रही है. कौन सी नहीं चमक रही? हिंडाल्को न्यू हाई, सेंचुरी न्यू हाई, आपका अल्ट्राटेक न्यू हाई, वोडाफोन न्यू हाई. एबी कैपिटल नहीं चला और एबीएसएल एएमसी, तो वो दोनों लीजिए. वोडाफोन का तो सर कोई नहीं आपको, लेकिन मैं कहता हूं इस भाव पे मुझे भारती बहुत पसंद है. गोपाल महेश्वरी जी का क्वेश्चन है सर, जिंदाल, हिसार एंड जेएसएल. हाँ, they are doing extremely well, और आपने देखा स्टेनलेस स्टील and the other businesses of steel are doing very well. I still think SAIL, JSPL are very attractively priced. 400 रुपए में, 390 में जिंदल स्टील एंड पावर, और 105 रुपए पे SAIL. और ये जो दोनों नाम आपने लिए हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं इस भाव पे. सर एक और क्वेश्चन है सर, हुडको पे आपके व्यूज क्या है? हुडको एंड क्विक हील. हुडको has underperformed, और वो rightly reason, लेकिन it's in a very sweet spot. अर्बन डेवलपमेंट इन हरियाणा, और जो उनका सेल ऑफ एसेट्स है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हूँ. सोना और अगर शेयर बाजार यहाँ रहेगा तो जमीन के भाव तो बढ़ने हैं. और गोदरेज प्रॉपर्टी डीएलएफ आपने देखा मल्टी बैगर हो चुके हैं. तो हुडको में बने रहिए, लेकिन और निवेश मत कीजिए. और निवेश करना है तो मुझे अभी इस भाव पे, मैंने जैसे आपको कहा, यूनियन बैंक और एसडब्ल्यू सोलर बहुत पसंद है. ये डबल होने के चेष्टा रखते हैं इन दिस ईयर. अंकित सोमानी जी का क्वेश्चन है सर, विजय सॉल्वेक्स, आंध्रा सीमेंट, दीपक फर्टिलाइजर. नहीं, दीपक तो मैंने बता दिया सर. आंध्रा सीमेंट भी बढ़ चुका है, पहला वाला मैं नहीं ट्रैक करता. तो आप अडानी ग्रुप के शेयर सर, अडानी ग्रुप शेयर. तो अडानी इज अ नो ब्रेनर सर. उसके पास सारे मोनोपोली बिजनेसेस हैं, उसके जितने बिजनेसेस थे सब अच्छा कर रहे हैं. और अभी मुझे लगता है अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस, इन 2 पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. इनमें सिप कीजिए, लेकिन सिप करके ओनरशिप जरूर होनी चाहिए. वॉलेटाइल शेयर्स हैं, लेकिन यहां से दम कम रखते हैं 30% अपसाइड का. एक और क्वेश्चन है सर, एक शिमारू एंटरप्राइजेस. नहीं सर, मैं ट्रैक नहीं करता. आप आईएफएल सिक्योरिटीज में भेज दीजिए सर, मैं आपको मेल आईडी भेज दूंगा. कोई भी रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन हो भेजिए,
उसमें हम आपको जो भी हेल्प हो सके कर सकते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन लीजिए सर, मेरे को एक और कंपनी उस पे कॉल पे जाना है। तो सारे व्यूअर्स से के काफी सारे क्वेश्चंस को हमने लेने का प्रयास किया, और एक आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, गोदरेज एग्रोवेट ऑफ गोदरेज ग्रुप। All Godrej Group's stocks are सोना है, स्टार्टिंग विद गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज कंज्यूमर, सारे शेयर लेके रखिए। गोदरेज ग्रुप से बढ़िया ग्रुप है नहीं, वो शेयर होल्डर फ्रेंडली है, कैश रिच है, और उनके पास सारे एसेट्स जो है वो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है इससे अच्छा ग्रुप है ही नहीं। सर मैं अब क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, बट आपसे अब हमने जो एक 2022 का सबसे हसीन शेयर कौन सा होगा, वो आखिरी शब्द आपके मुंह से सुन के हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो एक 2022 का सबसे हसीन शेयर। सर ये कैश मिड कैप में मैंने कहा ना, मुझे एसडब्ल्यू सोलर, यूनियन बैंक बहुत पसंद है, और लार्ज कैप में मैंने जैसे मुझे कहा, मुझे लगता है टाटा मोटर विल टेक द केक। ओके सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बहुत ही लाइव आपके साथ सेशन रहा। नो डाउट हम थोड़ा सा सर को एक और मीटिंग में आगे जाना है, तो उस वजह से हम इसको और आगे कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली हम फिर कभी और वसीम सर को बुलाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर हमें समय देंगे। बहुत आपका बिजी शेड्यूल था, उसमें से आपने समय निकाला। अब नाउ आई रिक्वेस्ट अतुल अग्रवाल जी, अगर अतुल अग्रवाल सर, for his formal vote of thanks, I request Atul Agarwal sir. Thank you, Devinder ji. Respected Sanjeev Bhasin ji, speaker of the today's session. Respected CA Atul Kumar Gupta ji, past president of the Institute of Chartered Accountants of India in absentia. Respected CA Nilesh Gupta ji, chairman CARC in absentia. Respected CA Devendra Kumar Somani ji, chairman CP committee and moderator of the program. Respected CA Pankaj Makkar ji from Ranchi, and the attendees who are present here in the today's program. I'm really happy to see the way Sanjeev ji has explained, and the important thing, not only the deliberation, but the question answers and the tips which Sanjeev ji has given, and the logic behind that. That is really something, as I mentioned day before yesterday or earlier also, that I am now willing to restart my investment in shares, which I stopped somewhere in 1995 when I lost huge money. So the kind of systematic approach which has been explained by Sanjeev ji shall be useful for each one of the participants here, and the questions being raised by the participants, these questions are very much relevant even to understand the share market and the strategy of investment. And what my thought says that what we are learning, definitely we are learning a lot from Sanjeev ji and the other speakers also on G business as well. But the way he has explained across this platform, and where we could get the opportunity to interact one-to-one, where we could get the opportunity to understand individual shares, I'm really impressed, and I'm sure in the time to come, I will try to connect with Sanjeev Bhasin ji directly also, to take more and more trip, and not only to take a tip, but to understand the share market in such a way so that whatever I lost in past, I won't be able to lose more money in future. And yes, I agree with him that yes, if we are willing to go for a long-term investment, then definitely we need to not to get panic. What I understand, over a period of 8 days, 9 days, we need to have a patience. And what is happening, whenever there is a correction in the share market, in this during that correction, we normally get panic, and because of that panic, we are losing money. So important is, if we have a patience and if we can go for a long-term investment, then I'm sure we won't be losing the money. So on behalf of CARC, I would like to extend my sincere gratitude to Sanjeev Bhasin ji, the speaker of the today's session. I would like to extend my sincere gratitude to the past president, C. Atul Kumar Gupta ji, our chairman, C. Nilesh Gupta ji, the attendees who are present here, who have raised the valid questions and valuable questions which have enhanced my knowledge also. I would like to extend my gratitude to Devendra Kumar Somani ji and Pankaj Makkar ji, who are present here in this particular session. At the end, I would like to extend my sincere gratitude to the
team CARC who have arranged all the logistics for this particular VCM. I would like to say one thing, sir, Sanjeev sir. By your name today, we have a gathering for more than 300. Till yesterday, with your name today, we have reached at a gathering of 325, which is really a very remarkable gathering in this 9 days program. Especially, I request all the members to kindly follow the COVID protocol, stay safe, stay healthy. Definitely, this Omicron is creating a lot of hassles, especially for the chartered accountants, because they are not in a position to protect themselves because of their busy tax audit and all. Let's hope for the best. With these words, I once again would like to say thanks to all of you. Thank you. हमारे दर्शक रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, और एक फाइनल क्वेश्चन और आ गया मेरे पास श्री रेणुका शुगर। तो एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब देके हम इस प्रोग्राम को एंड करने जा रहे हैं। एक श्री रेणुका शुगर, बहुत ही लोग इसमें लगे हुए हैं और काफी सारी न्यूज आ रही है, तो एक आखिरी ओपिनियन रेणुका शुगर, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। नहीं, देखिए, शुगर में तो टॉप रैंक पे रही है DCM श्रीराम, बलरामपुर चीनी और EID पैरी। श्री रेणुका और बजाज हिंदुस्तान अंडरडॉग्स है, बिकॉज उनके ऊपर डेट बर्डन काफी था, लेकिन शुगर इज इन अ स्वीट स्पॉट। और आपने देखा ही है किस तरह से कंजम्पशन हैज हिट द रूफ। आपने देखा है प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब हैव रिजन, बट यू नो स्टॉक्स हैव आल्सो मूव्ड अप वेरी शार्पली। अगर आपने रहना है तो ऑलवेज बी विद द मार्केट लीडर, बलरामपुर चीनी, DCM श्रीराम एंड EID पैरी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी दर्शकों को, आप सभी मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू संजीव बसीन सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। एक और चीज हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे सर, कल हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मधु केला जी रहेंगे, और उनका थोड़ा सा टाइमिंग चेंज है। कल हम 3:30 बजे ज्वाइन करेंगे, बिकॉज उनको भी 5:30 बजे एक मीटिंग में जाना है। तो हम कल हमारा समय नहीं कम करेंगे, कल हमने प्रोग्राम को जल्दी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। तो 3:30 बजे हम मिलते हैं इसी दिन इसी चैनल पर, सेम लिंक के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू देवेंद्र।